Hello everyone, welcome to the Gayatri English Medium School, Sanchur. In today's video, we will discuss glossary, activity first and activity second. और ये सब किसकी है? Of chapter second. What was the name of the chapter? Chapter का नाम क्या है? Do you remember that? Yes, smile with blessings. So let's start our today's video. Glossary. Okay, first word is caring. What do you mean by caring? Caring means क्या होता है? Caring means उठाकर किसी वस्तु को इधर से उधर ले जाना. The old lady was carrying a basket of fruit. Old lady जो थी उसके पास basket of fruit थे. Next word is stepped. Stepped means कदम रखा. जैसे हम चलते हैं और हमारा कदम किसी छिलके पे आ जाए, किसी वस्तु पे आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेप्ड. नेक्स्ट वर्ड इज पील. व्हाट डू यू मीन बाय पील? पील ऑफ बनाना, पील ऑफ पपाया, पील ऑफ वाटरमेलन, पील ऑफ एप्पल. पील मीन्स क्या होता है? पील मीन्स होता है छिलका. नेक्स्ट वर्ड इज स्कैटर्ड. स्कैटर्ड मीन्स क्या होता है? स्कैटर्ड मीन्स होता है बिखर गए, इधर से उधर सारे बिखर गए. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक माला की मोतियों की माला है और उसकी जो मोती है वो अगर इधर वो धागा अगर टूट जाता है तो उसकी मोती सारे क्या हो जाते हैं? स्कैटर्ड हो जाते हैं इधर उधर, यानी बिखर जाते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज पिक्ड अप. पिक्ड अप मीन्स उठाया. मामा इज यूज्ड टू से एवरीवन दैट पिक्ड अप दैट बास्केट, picked up your clothes. Picked up means उठाना. Next word is dustbin. Yes, everyone knows it. सबको पता है डस्टबिन क्या होता है. Dustbin means कचरा पात्र. Next one is blessing. Of course, blessing. God की blessing हम सबको चाहिए. Blessing means आशीर्वाद. Activity first. Tick against the correct option. Here we have 4 options given here. See, A, B, C, D. 4 options है और जो correct option होगा we have to tick over there. जो correct होगा उसे हमें tick करना है. First one is an old lady was going to. Old lady बूढ़ी औरत जा रही थी. She was going to hospital. No. She was going to school. No. She was going to temple. मंदिर जा रही थी वो. No. She was going to market. Yes. She was going to market. Next point is the old lady stepped on the peel of. Old lady जो थी उसका step यानी कदम आ गया उस peel पर, छिलके पर. कौन से छिलके पर आ गया? On the peel of apple? No. On the peel of papaya? No. On the peel of orange? No. On the peel of banana? केले के छिलके पर उसका पैर आ गया था. Next one is the old lady said to Meena. Old lady ने मीना को कहा. अब मीना ने old lady की हेल्प की. जब हमारी कोई हेल्प करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? सॉरी. No. Excuse me. No. Nothing. कुछ नहीं कहते उसको. No. We always said thank you. तो मीना ओल्ड लेडी ने भी मीना को थैंक यू कहा. Point B is answer the following questions in brief. Brief में हमें आंसर्स लिखने हैं. Brief means in short. छोटे में हमें आंसर्स लिखने हैं. The first one is what was the old lady carrying or what was the old woman carrying? Old woman क्या कैरी कर रही थी? क्या उठा के ले जा रही थी? Yes, she was carrying a basket of fruits. क्या ले जा रही थी वो? Basket of fruits. Question second is who helped the old lady to stand? किसने हेल्प की ओल्ड लेडी की खड़े होने में? Around people around her, आसपास के लोग? No.
Meena. Yes, Meena helped her to stand. Next question is, where did Meena throw the banana peel? बनाना का जो पील था यानी केले का छिलका था उसको मीना ने कहाँ थ्रो किया, कहाँ फेंका? हमें कहाँ फेंकना चाहिए उसे? इनटू द डस्टबिन। डस्टबिन के अंदर ही उसे फेंकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट डिड द ओल्ड लेडी गिव टू मीना? मीना को ओल्ड लेडी ने क्या दिया? क्या दिया? हर ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद। Now the point C. Look at the picture given below. नीचे एक पिक्चर दी गई है, उसे देखो। There are various types of fruits in the basket. वहाँ पर various type के fruits है, बहुत सारे different fruits हैं। Write their names by choosing a suitable word from the box. बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में से हमें उनके नाम को सिलेक्ट करके लिखना है। That which fruit is this and which fruit is this. We have to write their names by selecting this words. First one is apple. Where is apple? Here is apple. Second one is banana. Where is banana? Here is banana. See? Next one is watermelon. Yes, here is watermelon. Next one is grapes. Where are grapes? Here are grapes. Next one is orange. Yes, next one is orange. Where is orange? Here is orange. You can see. And the last one is papaya. Papaya means papita. कहाँ है? Here it is. Here is papaya. Now let's proceed. Point B. Look at the picture or pictures. Here are 4 pictures given. Some fruits peel for eating and some I eat with skin. कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हम क्या करते हैं? पील करते हैं यानी जैसे उसके ऊपर छिलका है तो उस छिलकों को हम निकाल के उस फ्रूट को खाते हैं। एंड सम आई ईट विथ स्किन। और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसकी स्किन यानी उसके ऊपर का कवर हम नहीं निकालते हैं और हम उससे डायरेक्टली खाते हैं। सो लेट्स सी। राइट पी फॉर द फ्रूट यू ईट आफ्टर पीलिंग एंड एस for the fruit you eat with skin. हमें P लिखना है जिसको हम पील करके खाते हैं और हमें S लिखना है जिसको हम बिना पील किए यानी छिलके के साथ हम खाते हैं। So let's have a look. First one is the picture of orange. Do we eat orange with its skin? क्या हम इसकी स्किन के साथ इसको खाते हैं? No. We eat it with the after peeling it. हम इसे पीलिंग करने के बाद यानी छीलने के बाद खाते हैं। So we will write here P. हमने यहाँ पर क्या लिखा है? P लिखा है। Next one is banana. Yes, बनाना को हम छिलके के साथ खा सकते हैं? No, स्किन के साथ नहीं खा सकते तो हम S नहीं लिखेंगे, स्किन को निकाल के खाते हैं इसलिए हम इसे इसके आगे लिखेंगे P. नेक्स्ट वन इज़ गुआवा. गुआवा मीन्स अमरूद. उस अमरूद को हम स्किन के साथ खाते हैं इसलिए हम लिखेंगे एस. नेक्स्ट वन इज़ मैंगो. हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ मैंगो. मैंगो को हम छिलके के साथ खा सकते हैं? नो, वी ईट इट आफ्टर पीलिंग द स्किन. सो वी विल राइट हियर पी. नेक्स्ट वन इज़ एप्पल. ऑफ कोर्स वी ईट इट आफ्टर पीलिंग इट और विदाउट पीलिंग. हम विदाउट पीलिंग भी इसको खा सकते हैं और आफ्टर पीलिंग भी इसे खा सकते हैं. तो यूजुअली ये स्किन के साथ खाया जा सकता है. दैट्स वाई वी विल राइट हियर एस. एंड द लास्ट पिक्चर इज ग्रेप्स. ऑफ कोर्स ग्रेप्स के हम छिलके निकाल के खाते हैं? नो, स्किन के साथ खाते हैं. दैट्स वाई वी विल राइट हियर एस. Now activity second.
गिव द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड लिस्टेड बिलो। हमें इनके अपोजिट्स लिखने हैं। अपोजिट मीन्स क्या होता है? उल्टा। विलोम शब्द जैसे डे का नाइट, दिन है तो क्या होगा? रात। डे का नाइट। वैसे ही उल्टी वर्ड हमें लिखने हैं, यानी अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। यू मे चूज दीज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको दिए गए बॉक्स की हेल्प लेकर नीचे दिए गए वर्ड्स के अपोजिट लिखने हैं, उल्टी वर्ड लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। फर्स्ट वन इज ओल्ड। ओल्ड मीन्स क्या होता है? ओल्ड मीन्स बूढ़ा। बूढ़े का अपोजिट क्या होगा? जवान। जवान को हम कहते हैं यंग। नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स जैसे हमने गाड़ी ली, गाड़ी को चाबी लगाई और उस की को घुमाया तो क्या होगी गाड़ी? स्टार्ट। और अगर हमें उसे रोकना है तो स्टार्ट करना यानी चालू करना, और रोकने को हम कहते हैं स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड इज गिव। यस, नेक्स्ट वर्ड इज गिव। गिव मीन्स क्या होता है? गिव यानी देना। गिव मीन्स देना। टेक। टेक मीन्स लेना। नेक्स्ट वन इज इन। इन मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर। स्टैंड। स्टैंड मीन्स खड़े होना, और सिट मीन्स बैठना। नेक्स्ट वन इज लाफ। लाफ मीन्स हंसना। वीप। वीप मीन्स रोना। वीप मीन्स रोना। नेक्स्ट वर्ड इज टॉल। टॉल मीन्स लंबा। शॉर्ट मीन्स छोटा। नेक्स्ट वर्ड इज फुल। फुल मीन्स भरा हुआ। द ग्लास इज फुल नाउ। एंड एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। हियर इज अ फुल ग्लास एंड हियर इज एन एम्प्टी ग्लास। पॉइंट बी of activity second. Name the activity as shown in the following pictures by choosing words. हमें बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में से हमें सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है, और फिर उन एक्टिविटी को यानी जो वर्क हो रहा है उसके नाम हमें लिखने हैं। यहाँ पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में बहुत सारे डिफरेंट वर्क किए जा रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई प्लांट को वाटर दे रहा है, कोई खेल रहा है, समवन इज़ ईटिंग, कोई खाना खा रहा है, समवन इज़ कैरिंग समथिंग। तो बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, उन सबको हमें यहाँ से सिलेक्ट करके लिखना है कि वो क्या कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ ईटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ईटिंग? ईटिंग मीन्स खाना खाना। हियर इज ईटिंग। नेक्स्ट इज प्लेइंग। Who is playing in this picture? Yes, these boys are playing in this picture. Boys यहाँ पर खेल रहे हैं। Next one is laughing. Laughing means हंसना। यहाँ पर कौन हंसता हुआ दिख रहा है? Here are two boys who are laughing. दो boys है जो laugh कर रहे हैं। Next word is caring. Yes, here is also an old lady. एक ओल्ड लेडी है जो यहाँ पर कैरी करके जा रही है बास्केट ऑफ फ्रूट्स। सो दिस इज कैरिंग। नेक्स्ट वर्ड इज स्किपिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्किपिंग? स्किपिंग क्या होती है? स्किपिंग होती है रस्सी कूद। ओके, सो रस्सी कूद कौन कर रहा है यहाँ पर? दिस गर्ल इज स्किपिंग ओवर हियर। नेक्स्ट वन इज digging. Yes, digging. Digging means खोदना। ज़मीन को खोद रहा है। कौन खोद रहा है? कौन डिग कर रहा है? Here is a boy who is digging the ground. Next one is hiding. Hiding means छिप जाना। कोई दिख रहा है यहाँ छिपा हुआ? This boy is hiding behind the bush. Next one is watering. Watering means पानी देना।
यहाँ पर एक बॉय है जो प्लांट को वाटर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वाटरिंग। नाउ एक्टिविटी थर्ड। The teacher will recite the poem aloud and ask the student to make pair and read out the poem to each other. अब नीचे एक पोएम दी गई है, इस पोएम को हम रीड करेंगे और आपको इसे ध्यान से सुनना है। The student will recite this poem after their teacher. आपको मेरे पीछे इसे रिसाइट करना है। रिसाइट करना यानी दोहराना है, बोलना है। Water and soap will make you sweet. Brush and comb will keep you neat. But sorry, please and thank you will make a sweeter child like you. Okay, listen it once again. Water and soap will make you sweet. Brush and comb will keep you neat. But sorry, please and thank you will make a sweeter child like you. Point B is, look at the following pictures. नीचे दी गई पिक्चर्स को हमें देखना है। फर्स्ट वन में जब कोई गर्ल किसी टीचर को गिफ्ट दे रही है, कुछ रोज़ दे रही है, उस समय टीचर क्या कह रही है उसे? थैंक यू। नेक्स्ट वन इज, वेट अ मिनट, गर्ल इज सेइंग थैंक यू ओवर हियर। टीचर उसे कुछ दे रही है तो गर्ल इज सेइंग थैंक यू। इन दिस पिक्चर एक बॉय है जो बाइक लेकर एक ओल्ड मैन की तरफ आ गया और अब वो क्या कह रहा है? आई एम सॉरी। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें सॉरी कहना होता है। जब हमारे लिए कोई अच्छे से काम करता है तो उसे, हमारी हेल्प करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? थैंक यू। यस। Now fill in the blanks by choosing suitable word for the given situations in each sentence. अब नीचे दिए गए कुछ सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस को हमें फिल करना है। अगर ऐसा होगा तो आप क्या कहोगे? सॉरी कहोगे या थैंक यू कहोगे? फर्स्ट वन इज, रवि हेल्प सीता इन हर होमवर्क। रवि ने सीता की हेल्प की उसका होमवर्क करने में। व्हाट सीता से, सीता क्या कहेगी उसे? सॉरी। सीता कहेगी थैंक यू। नेक्स्ट सिचुएशन इज, योर फ्रेंड विशेज यू हैप्पी बर्थडे। व्हाट विल यू से टू हिम? आपका फ्रेंड आपको हैप्पी बर्थडे कह रहा है तो आप क्या कहोगे? थैंक यू कहोगे। नेक्स्ट वन इज, यू हैव लॉस्ट योर फ्रेंड्स नोटबुक। तुमने अपनी फ्रेंड की नोटबुक ली और तुमने उसे क्या कर दिया? घुमा दिया। What will you say to him? अब आप उसको क्या कहोगे? सॉरी या थैंक यू? ऑफ कोर्स सॉरी कहोगे, आपने उसकी नोटबुक घुमा दी। नेक्स्ट वन इज, योर ग्रैंडफादर गिव्स यू अ टॉय। आपके दादाजी ने आपको क्या दी है? टॉय दिया है, खेलने के लिए खिलौना दिया है। What will you say to him? आप क्या कहोगे उसे? थैंक यू। एक्टिविटी 4. Write 5 sentences about your grandparents with the help of the following chart. आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? दादा, दादी, नाना, नानी। ग्रैंड पेरेंट्स ने आपकी कुछ हेल्प की है, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो आप उनके बारे में क्या बताओगे? वो कैसे हैं? तो लेट्स सी, हमें किस वे से लिखना है? माई ग्रैंड पेरेंट्स आर, मेरे दादा दादी हैं। कैसे हैं? फर्स्ट वन दिया हुआ है, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर लवली, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, लवली हैं, प्यारे हैं। सेकेंड लाइन वी विल राइट लाइक दिस, हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले लिखेंगे माई ग्रैंड पेरेंट्स आर, फिर हम यहाँ से वर्ड सेलेक्ट करेंगे, उस वर्ड से हम इसको सेंटेंस कंप्लीट करके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे।
ओके, फुल स्टॉप मीन्स लास्ट में सेंटेंस होने के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड फुल स्टॉप. My grandparents are helpful. My grandparents are helpful. My grandparents are friendly. My grandparents are friendly. My grandparents are kind. My grandparents are kind. My grandparents are honest. My grandparents are honest. My grandparents are caring. My grandparents are caring. My grandparents are sharing and truthful. My grandparents are sharing and truthful. Understood? Friendly means बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ दोस्त जैसे रहते हैं. हेल्पफुल मीन्स हमारी मदद करते हैं. ऑनेस्ट मीन्स होता है बहुत ही ईमानदार. काइंड मीन्स दयालु. केयरिंग मीन्स देखभाल करते हैं. शेयरिंग मीन्स हमारे साथ कुछ भी शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स लाते हैं तो सबसे पहले आप ही को मिलता है. ट्रूथफुल यानी हमेशा सच बोलते हैं. With this, we have completed our chapter 2. Now your work is you have to write this exercise in your notebook with very slowly and neatly and wonderful handwriting. Along with that, उसके साथ आपको क्या करना है? You have to draw the picture of a basket full of fruits. बास्केट का पिक्चर बनाना है, उसमें बहुत से फ्रूट्स डालने हैं. और इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हुआ, अगर आपसे होता है, then you will write the name of each fruits you have drawn in your basket of fruit. Okay? Thank you.